اللہ کرے یہ بات برداشت ہو جائے، نہ ہو جائے تو بعد میں مل لینا۔ بریلی شریف ہر حیثیت سے ہمارا مرکز ہے، چاہے وہ فقہی حیثیت ہو، علمی حیثیت ہو، یا یوں کہیے قیادت کا معاملہ بھی ہو، تو کل بھی ہمارا مرکز بریلی تھا، آج بھی ہمارا مرکز بریلی ہے۔ ہر دور میں ہماری وہاں سے قیادت ہوتی ہے، اسی زمین سے تشریف لانے والی ذات کو حضور صوفی رضوان میاں کہا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے تشریف لائیں گے، کون؟ حضور توصیف رضا صاحب، وہ بھی آئیں گے، وہ تشریف لائیں گے، ان کا بھی چہرہ دیکھیے گا۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نسل میں آج بھی کالے کلوٹے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دو شہزادے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے آنے والے ہیں، دونوں کے چہرے دیکھنا اور فیصلہ کرنا کہ اگر آج کے پٹھان کا حسن ایسا ہے تو کل کے احمد رضا خان کا حسن کیسا رہا ہوگا۔ آج کنگن کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، انہی کے خاندان کی ایک شخصیت کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بات کرنے لگا ہوں کون تاج الشریعہ؟ وہ تاج الشریعہ کہ جس کو کعبے کے غسل کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ آج میں پیروں سے اور مریدوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، ہم خدا پرستی کی کوشش کریں، یہ جو شخصیت پرستی ہونے لگی ہے نا، اس سے نکلیں اور خدا پرستی کی طرف چلیں۔ اس لیے کہ پیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو خدا تک پہنچا دے، یہی مطلب ہے نا جی۔ بھئی میں نے تاج الشریعہ کا دامن اس لیے تھاما تاکہ آخرت میں کام بن جائے۔ آپ نے اپنے پیر کا دامن کس نیت سے تھاما؟ میں کسی پیر کی برائی نہیں کر رہا ہوں، جس پیر میں ساری شرطیں پائی جاتی ہیں وہ حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر کوئی 18 انگوٹھی پہن کے بیٹھ جائے، پیروں میں چھلے پہن کے آ جائے، تو میں اسے پیر تو نہیں پیر ضرور کہہ سکتا ہوں۔ خیال رکھیے گا، پیر پرستی جو آج عرف میں لے رکھی ہے نا ہم نے، کہ پیر صاحب نے آواز دی تو بندہ دوڑ گیا، 5 بار مسجد سے آواز آئی ہے، ایک بار نہیں گیا۔ پھر ذرا مجھے بتاؤ جنت کدھر ہے؟ خیال کیجئے گا، آج معذرت کے ساتھ یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ میرے سامنے زیادہ تر نوجوان بیٹھے، کیسی روزی کمائیں گے؟ آپ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ کیسی روزی کمائیں گے؟ یاد رکھیے گا، جنتی ہونا ہو یا ولی ہونا ہو، اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ روزی کا حلال ہونا ضروری ہے۔ ارے بولو زور سے، کیسی روزی ہونی چاہیے؟ بولو کیسی روزی ہونی چاہیے؟ رزق کیسا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ ہم روزی کیسی کمائیں گے؟ ایک ایک جوان سے کہنا چاہوں گا، اگر تنگ دستی زندگی میں آ جائے، فاقے ہو جائیں، فاقے اٹھا لینا، حرام کبھی گھر نہ لانا، حرام کبھی گھر نہ لانا۔ آپ کے باپ کسان ہو سکتے، آپ کے دادا کسان ہو سکتے، وہ نہیں تو پردادا کسان ہو سکتے، لیکن تعلق زمین سے ہم سبھی کا ہے۔ میں بھی ایک کسان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے باپ نے کھیتی نہیں کی تو کیا ہوا، میرے دادا نے تو کھیتی کی ہے۔ میں بھی مٹی سے تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھنے لگوں کہ بتائیے، اگر فصل کے اندر غلط دوا ڈالی جائے تو فصل کا کیا بنے گا؟ فصل کا کیا بنے گا؟
किसी भी किसान से आप पूछेंगे कि गलत दवा डालने से फसल का क्या बनेगा, हर किसान कह देता है जनाब आपको क्या पता है, अगर गलत दवा खेती में लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है। सुनो, अगर गलत दवा से फसल खराब होती है तो गलत रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाया है। गलत रिज़्क़ खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। खुदा के वास्ते कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाया करो। मैंने ये निस्बत देखी है, माफ कीजिएगा, आज कितने बनावटी पीर ऐसे हैं चबाया करते हैं। पहले ऐलान कर दिया जाता है 4 गाड़ी आगे चाहिए, 5 गाड़ी पीछे चाहिए। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ वो लोगों रिज़्क़ हलाल की कोशिश किया करो। अल्लाह वाले चबाया करते हैं, किसी ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जिधर से अल्लाह वाला गुजरता है खुदा की रहमत ऐलान करती है। वो देखो मेरा नेक बंदा रहा है, जिसे बरकत चाहिए उसके कदमों में आ जाओ। आना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना मेरा काम। खुदा सलामत रखे, इन्होंने मेहनत की है तो तुम्हारी मेरी बात हो रही है, और न जाने कितनों को तो मैं हजम नहीं हो रहा हूं। मुझे इसकी भी टेंशन नहीं रहती है, पाए मुरा रंग ने उनके खुदा तंग ने। हाँ, वो मिजाज है मेरा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये कुर्सी चापलूसी के लिए नहीं, ये सच बोलने के लिए। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद आएंगी। करेंगे बर्दाश्त, करेंगे बर्दाश्त। खुदा सलामत रखे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने पीर देखा है बरेली में ताजुल शरिया, लोग एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते थे। जिन आंखों ने उस चेहरे को देखा वो आंखें चूमने के लायक है। लोग एक झलक के लिए परेशान रहते थे। जहां हजरत बैठते थे वो हजरत का कमरा था ना, तो वहां खिड़की लगी थी, भीड़ लगती थी बाहर। तवज्जो करे भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक ये बातें पहुंच जाए। भीड़ लगती थी लोगों को, तो यूसुफ भाई जो हजरत को दवा वगैरह खिलाते थे, और अल्लामा आशिक साहब किबला जो हजरत के पास किताबें पढ़ते थे, ये लोग रहते थे। हुजूर भीड़ लग गई है बाहर, तो हजरत फरमाते थे क्यों आए लोग? का मुसाफा करने आए। क्या करने आए? जोर से और जोर से क्या करने? तो ये नहीं कहते थे मैं ताजुल शरिया हूं, खिड़की बंद कर दो। फरमाते थे यूसुफ दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलता था, लोग मुसाफा करते थे, और मुसाफा करके हज़रत फरमाते थे लोग गए क्या हैं? बहुत गौर से सुनना मेरी बात जो बताने लगा हूं। लोग गए क्या हैं? फिर कोई भी कहता था हुजूर अभी खड़े। फिर सरकार ताजुल शरिया फरमाते, ये मेरे कानों सुनी बात, आंखों देखी बात है, अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। हम बैठे होते थे, हजरत हमें बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, तो हजरत कहते थे लोग गए क्या हैं? हुजूर लोग खड़े थे, इतना सुनना होता था, चलाल आ जाता था। फरमाते थे अब क्या कर रहे हो? तुम्हें मुसाफा करना था, हो चुका। तुम मुझे देखना चाहते थे, देख चुके, अब क्यों खड़े हो? ये कोई कश्मीर की वादी लगी है जो यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हो? ये कोई खूबसूरत जंगल लगी है जो यहाँ पे खड़े हो? बल्कि फरमाते थे जल्दी जाओ और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करो। अगर यहाँ खड़े रहोगे हलाल रोजी कहाँ से लाओगे? सुनो, पीर वो होता है जो सिर्फ जेब पे नजर न रखे, नस्लों के रिज़्क़ हलाल पे नजर रखता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कैसी रोजी कमाएंगे? जोर से हलाल रोजी कमाइएगा, अपने बच्चों को चटनी खिला दीजिए। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा, आप बात बात में कह देते हो ना अब्बा क्या किया तुमने हमारे लिए? कल भी किराए के मकान में थे, आज भी किराए के मकान में। क्या किया तुमने हमारे लिए? मेरे लाल, मेरे शहजादे, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तेरे बाप ने तुझे पाल के जवान कर दिया है ना, तो इससे बड़ी कुर्बानी तेरे लिए उसकी और क्या हो सकती है?
उससे पूछ रहा तुमने मेरे लिए क्या किया? अब्बा फला का फ्लैट मौजूद है, उसकी इमारतें बुलंद खड़ी हैं, मैं तो कभी कभी हैरत करता हूँ, लोग कहते मुझे तो गैरत आती है कि मैं एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूँ, मैं एक दुकान में ठोका चलाने वाले का बेटा हूँ। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर तुम्हारे बाप ने मजदूरी करके तुम्हें पाला है तो उससे मर्सिडीज की तवक्को न कीजिएगा, उससे ये मत सोचिएगा कि तेरे पसंद की बिल्डिंग बना के देता तब वो कामयाब बाप होता, तेरे लिए बैंक बैलेंस बना के छोड़ता तब वो कामयाब बाप होता। अगर तुझे ये पता है तेरे बाप ने छप्पर में रख के तुझे पाला है लेकिन रक्शे चला के पाला है, तो उसे गरीब कह के जलील न करना, उसे हकीर न बताना, उसके कदमों में बैठना, उसके तलवे दबाना, उसके पैरों को बोसे देना। अगर वो उठ के पूछे क्या कर रहा है, कहना अब्बा तेरा एहसान है कि तूने पसीना बहा के खिलाया है, किसी गरीब का खून निचोड़ के नहीं खिलाया। हम किस दौर में जी रहे हैं? आज बेटों के लिए बैंक बैलेंस सब कुछ हो गया, आज दौलत सब कुछ हो गई। उस बाप से पूछ जाके जो रोज मंडी में बिकता है, जाके पूछ तो सही उसने कैसे तेरे शौक पूरे किए। आज यहाँ सारे 6-6 फीट के बन के बैठे हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा पैसा कभी ना कमाना जो माँ बाप के कफन को भी फोन कॉल पे देखना पड़े। ऐसी दौलत कभी ना कमाना जो माँ के जनाजे को कंधा ना दे सको। दिल खून के आंसू होता है। झारखंड के एयरपोर्ट पे खड़ा था मैं, एक नौजवान आया, क्लीन शेव था, उसने आके मुझे सलाम किया, कहने लगा अम्मा साहब, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप? बोले मैं आपको बहुत सुनता हूं। मैंने जा किधर रहा है? उसने कहा मैं सऊदी जा रहा हूं, दुआ करें। मैंने कहा खुदा करे तेरा आखिरी सफर हो। और फिर जो लौट के आए थे कभी ना जाए, वो मेरा मुंह देखने लगा, हजरत ये क्या कह रहे हो? मैंने उससे कहा सच बता, घर रोता हुआ किसे किसे छोड़ा है? घर रोता हुआ किसे किसे छोड़ के आया है? उसने कहा कितने रो रहे थे क्या बताऊं, कोई परिवार का ऐसा नहीं था, यहां तक कि पड़ोसी भी आंसू बहा रहे थे। मैंने कहा सबसे ज्यादा रोने वाला कौन था? मैंने इतना कहा रो दिया। कहने लगा मैंने माँ को मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि देख नहीं पा रहा था। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, तुम्हें दौलत के ख्वाब इतने अंधा ना कर दे कि माँ बाप से इतना दूर चले जाओ कि उनके जनाजे को कंधा ना दे सको। मैंने कहा यार तू जा रहा है, खुदा के वास्ते वापस आना तो यहाँ आके कोई छोटा सा बिजनेस कर लेना, ताकि तू शाम का खाना माँ बाप के साथ बैठ के खा सके। शाम का ही ना खा सके, हफ्ते में एक दिन आ जाया करे, हफ्ते में एक दिन भी ना आ सके, महीने में एक बार आ जाया करे, और कम से कम इतना जरूर